السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز اور میں ہوں احسن رضا اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ اے اللہ، تمام چیزیں تیرے ارادے کے رخ پر گامزن ہیں۔ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میں ہمیں ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ، آمین۔ ساتھ ہی آپ کو خبر دیں کہ سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس کا فیصلہ 8 سال بعد سنا دیا گیا۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے بھتہ نہ دینے پر آگ لگا کر 259 افراد کو قتل کرنے کے مقدمے میں رحمان بھولا اور زبیر چریا کو 264 مرتبہ عمر قید اور 264 مرتبہ موت کی سزا کا حکم دیا۔ سینٹرل جیل میں قائم انسداد دہشت گردی عدالت میں سانحہ بلدیہ کیس کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت عدالت نے سانحہ بلدیہ فیکٹری کا محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا گیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں 2 ملزمان رحمان بھولا اور زبیر چڑیا کو سزائے موت سنائی، جبکہ 4 ملزمان MQM رہنما رؤف صدیقی، ادیب خانم، علی حسن قادری اور عبدالستار کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا۔ عدالت نے 4 ملزمان فیصل احمد، علی محمد، ارشد محمود اور فیکٹری مینیجر شاہ رخ کو بھی سہولت کاری کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد 2 ستمبر کو کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ رحمان بھولا اور زبیر چڑیا کو 264 افراد کے قتل پر 264 مرتبہ سزائے موت دی جائے۔ دونوں مجرموں کو فیکٹری کے اندر ملازمین کو قتل کے جرم پر 264 مرتبہ عمر قید کی سزا سنا دی۔ 60 لوگوں کو زخمی کرنے کے جرم میں 10 سال قید اور 1 لاکھ جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ 264 جاں بحق افراد کے ورثاء کو 2 لاکھ روپے دینے کا حکم دیا گیا۔ مجرموں کو بھتہ خوری کے الزام میں 10 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ رؤف صدیقی، حسن قادری، ڈاکٹر عبدالستار اور ادیب خانم کے خلاف استغاثہ جرم ثابت نہیں کر سکے۔ مفرور ملزم حماد صدیقی اور علی حسن قادری کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ مجرم شاہ رخ، علی محمد، فیصل محمد، ارشد محمود کو سہولت فراہم کرنے کے الزام میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ سہولت کاروں نے کیمیکل کے ساتھ مجرموں کو فیکٹری میں داخل ہونے میں مدد کی۔ سانحہ بلدیہ میں کھو جانے والے پیاروں کے لیے تڑپنے والوں کو انصاف مل گیا۔ اپنے اکلوتے لاڈلے کو آگ میں کھو دینے والی ماں نے 8 سال گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلائی۔ بیٹے کے جلتے جسم کی حدت کی شدت محسوس کرتی ماں سعیدہ نے تمام ملزمان کو پھانسی کا مطالبہ کر دیا۔ اس کی آواز تو صبح میں سنی اور 4:40 پر اس کی میسج آئی تھی کہ امی آج تنخواہ نہیں ملے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن وہ باتیں، وہ میسج مجھے کیا پتا تھا کہ یہ آخری ہے، یہ میرے بیٹے کے آخری ہے۔ میرے بیٹے سے اور میں میرے بیٹے کو نہیں دیکھ پاؤں گی، میرے بیٹے سے بات نہیں کر پاؤں گی، میرے بیٹے کے لیے کھانا نہیں بنا پاؤں گی۔ آج 8 سال میں نے چولہا نہیں جلایا، بہت کوشش کی جی باہر کا کھا کر طبیعت خراب ہوتی ہے، تھوڑا کوشش کر لے، لیکن نہیں۔ سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس میں رحمان بھولا اور زبیر چریا کو موت کی سزا سنا دی گئی۔ اس کیس کے 768 گواہوں میں سے 400 گواہوں کا بیان ریکارڈ کیا گیا، جبکہ 368 گواہوں کے نام واپس لے لیے گئے۔ 11 ستمبر 2012 کو بلدیہ فیکٹری میں 250 سے زائد افراد زندہ جل گئے۔ پہلے حادثہ سمجھا گیا، بعد میں معلوم ہوا کہ بھتہ نہ دینے پر فیکٹری میں منصوبہ بندی کے تحت آگ لگائی گئی۔ پولیس نے کیس میں MQM کے کارکن رضوان قریشی کو گرفتار کیا۔ اس نے انکشاف کیا کہ حماد صدیقی نے رحمان بھولا کے ذریعے فیکٹری مالکان سے 20 کروڑ روپے بھتہ طلب کیا تھا۔ مالکان نے بھتہ نہ دیا تو فیکٹری میں آگ لگا۔ رضوان قریشی کے بیان کے بعد کیس کا رخ ہی بدل گیا۔ مقدمہ سٹی کورٹ سے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں منتقل ہوا۔ جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم تشکیل دی گئی جس میں ہولناک انکشافات سامنے آئے۔ رحمان بھولا کو انٹرپول کی مدد سے بینکاک سے گرفتار کر کے پاکستان لایا گیا۔ زبیر چریا کو گرفتار کیا گیا، تاہم حماد صدیقی آج تک گرفتار نہ ہو سکے۔ فیکٹری مالک ارشد بھائیلا نے دبئی سے ویڈیو لنک کے ذریعے GIT اور عدالت کو بیان ریکارڈ کروایا، پتہ طلب کیے جانے کی تصدیق کی، ملزمان کے نام بھی بتائے۔ فروری 2017 میں متحدہ رہنما رؤف صدیقی، رحمان بھولا، زبیر چریا اور دیگر پر فرد جرم عائد کی گئی۔ کیس میں 400 افراد نے بیانات ریکارڈ کرائے۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि दुश्मन के अजाइम खाक में मिलाने की सलाहियत रखते हैं। पाक फौज इलाकाई खतरों और चैलेंजेस से निमटने के लिए हर दम तैयार है। आर्मी चीफ ने जेहलम के करीब फायरिंग रेंज के दौरे के दौरान अफसरों और जवानों से खिताब में वाज़ेह पैगाम दे दिया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ ने आज फील्ड फायरिंग रेंज जेहलम का दौरा किया, जहां उन्होंने जंगी मशकों का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने चीनी साख्ता V4 टैंकों की मशकों का मुआयना किया। और उसकी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि VT4 टैंक के इजाफे से आर्मर्ड कोर की सलाहियत में इजाफा हो गया है। जदीद टैंकों की शमूलियत से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत मजबूत हुई है। दुश्मन के अजाइम खाक में मिलाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। DG ISPR मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर के मुताबिक सिपह सालार का इस मौके पर कहना था कि पाक फौज मुल्क को दरपेश खतरात से आगाह है। हम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार हैं। मुल्की सलामती को दरपेश चैलेंजेस का भी मुंह तोड़ जवाब देने और दुश्मन के अजाइम खाक में मिलाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वजीर आजम ने वज़रा को गैर जरूरी बयानबाजी से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम की कोई जाती राय नहीं होती। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि खबरदार कोई वजीर फजूल बात न करे। वजीर आजम ने वज़रा को हसास मामलात पर बयानबाजी से रोक दिया। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने APC को पुराना स्क्रिप्ट करार दे दिया। बोले सब ने अपनी पुरानी बातें दोहराई, सब इस बार उनमें जहर ज्यादा है, लेकिन हम ने तमाम तकारीर खुले दिल से सुनाई हैं। उनका मजीद कहना था कि जमहूरियत का दर्ज देने वालों ने जमहूरी इक़दार को करप्शन की नजर किया। जब FATF कवानीन में उनका बस ना चला तो उन्होंने अपना सारा जहर तकरीरों में निकाला। के बारे में कोई हमें न परेशानी थी न परेशानी है। सब तकारीर दिखाई गई, वही पुरानी बातें थीं, लेकिन जरा उसमें जरा जहर ज्यादा मिला हुआ था। इन्होंने हमेशा इस मुल्क को इस्तेमाल किया है जाती मफादात के लिए। इस मुल्क के जो भी इदारे इस वक्त जो काम नहीं कर रहे उनको मफलूज करने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हुए, करप्शन में इन्वॉल्व हुए, हर किस्म की उस चीज में इन्वॉल्व हुए जिससे कि इस मुल्क को नुकसान पहुंचा। और ये जो FATF का कानून था ये आखिरी हरबा था उनका हमें ब्लैकमेल करने का। जब वो भी नहीं चला तो फिर उन्होंने ये तकरीर की, वरना मेरा ख्याल है कि वो ये तकरीर करते भी नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमत मुखालिफ तहरीक के बारे में बातचीत की गई। APC के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक के मरहले को आगे बढ़ाने के लिए अपोजिशन की क़यादत के राब्तों का सिलसिला जारी है। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल और ABC में होने वाले फैसलों की रोशनी में अपोजिशन की आइंदा की हिकमत अमली पर बातचीत की। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि अपोजिशन को मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। APC में होने वाले फैसलों पर अमल करने के अपोजिशन मिलकर हिकमत अमली बनाएगी। दूसरी तरफ कल रहबर कमेटी की बैठक भी सजेगी, जिसमें हुकूमत मुखालिफ तहरीक के बारे में लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। एवन फील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी का मामला। मरियम नवाज का कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का फैसला। मुस्लिम नून के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी कहते हैं नैब अपोजिशन को दबाने में मशरूफ है। आटे और चीनी में 400 अरब से ज्यादा की करप्शन हुई है। नैब को आटे और चीनी में करप्शन नजर नहीं आती। मईशत की तबाही से तवज्जो हटाने के लिए केस बनाए जा रहे हैं। एहतसाब अदालत में भी कैमरे लगाए जाएं ताकि हकाइक अवाम के सामने आए। लंदन में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दफ्तर खारजा से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। हम मफरूजों पर नहीं जा सकते, कल तक बताएं अदालती हुक्म मौसूल हुआ या नहीं। अदालत की रिमार्क देते हुए कहा कि नवाज शरीफ की हाजिरी यकीनी बनाना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है।
मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। हुकूमत का तमाम तालीमी इदारों को शेड्यूल के मुताबिक खोलने का ऐलान। वजीर तालीम का कहना है कि कोरोना की सूरत हाल कंट्रोल में है। SOPs पर अमल न करने वाले स्कूल्स बंद किए गए। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि कोरोना के केसेस बढ़े हैं। उनका मजीद कहना था कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से सेहत आमा की सूरत हाल से मुतालिक बगौर जायजा लिया गया है। केसेस की तादाद में कोई खातिर ख्वाह इजाफा देखने में नहीं आया। तमाम आदाद शुमार हमारे सामने हैं, डरने की कोई बात नहीं। जगह पे जो तालिब इल्म हैं 6, 7, 8 के ओरिजिनल टाइम टेबल के मुताबिक वो स्कूल जो है उसको अटेंड करेंगे। सिंध ने फैसला किया कि वो अभी ये नहीं करेंगे। क्यों ये किया? जो इन्फेक्शन के रेट है वो तो तकरीबन वही है, लेकिन बहरहाल हमारी तो ख्वाहिश थी कि मुश्तरका फैसला सारे मुल्क के लिए होता, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा जी हम एक हफ्ता और रिव्यू करेंगे। हम जितने भी फैसले करते हैं वो हम स्टेटिस्टिक्स की बुनियाद पे, एविडेंस की बुनियाद पे करते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो सिफारिशात हैं उनके मुताबिक करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा ये कहना भी ज़रूरी होगा कि कहीं कहीं कुछ लोग इस किस्म की बात कर रहे हैं कि जैसे कोई वबा में फिर इजाफा हो रहा है। अगर आप शुमारियात देखें, अगर स्टेटिस्टिक्स देखें तो ऐसी कोई एविडेंस जो है वो नज़र नहीं आती। पंजाब इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी स्कूल बोर्ड ने इंटर पार्ट 2 के नताइज का ऐलान कर दिया। मुल्तान बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 86.21% रहा। साहिवाल 96.84 रहा और लाहौर बोर्ड के नताइज का ऐलान चेयरमैन प्रोफेसर रियाज हाशमी ने किया। कोरोना की वजह से तमाम तलबा और तालिबात को बगैर इम्तिहान के पास कर दिया गया। पंजाब में इंटरमीडिएट बोर्ड ने इंटर पार्ट 2 के नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 99.1% रहा। चेयरमैन प्रोफेसर रियाज अहमद हाशमी ने बताया कि इस इम्तिहान में 1,91,280 तालिबे इल्मों ने दाखिला फॉर्म जमा कराए, जिनमें से हुकूमती फार्मूला के तहत 1,63,959 उम्मीदवार कामयाब हो पाए और इस तरह से कामयाबी का तनासुब 99.43% रहा। इसी तरह साहिवाल इंटरमीडिएट इम्तिहानात में 48,592 तलबा तालिबात ने शिरकत की। बरतानिया पर फिर कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ लिए। जानलेवा वायरस के फैलाव का दर्जा चौथी सतह भी पार कर गया। 5वें दर्जे पर केसेस बढ़ने पर दोबारा लॉकडाउन भी किया जा सकता है। कोबरा कमेटी के बाद बरतानी वजीर आज़म ने नई पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर अपनी नाअहली का मलबा चीन पर डाल दिया। उनका कहना था कि चीन की जानिब से कोरोना वायरस फैलाने पर उसका एहतसाब होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि कोरोना बहरान के इब्तिदा में चीन ने अंदरूनी परवाजों पर पाबंदी आयद की। बैरूनी परवाजों पर पाबंदी आयद न करके चीन ने वायरस को फैलाने का मौका दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आलमी इदारे सेहत को चीन कंट्रोल करता है। WHO और चीन ने कोरोना के इंसान से इंसान में मुंतकिल न होने की गलत बयानी की। चीन हजारों टन प्लास्टिक और कचरा समंदरों में फेंक रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि कोरोना के बायस पूरी दुनिया की मईशत को नुकसान पहुंचा है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।